Yes, so good morning everyone. Today we are going to watch a short video of the conservation of soil. Soil को जो है हम लोग कैसे conserve कर सकते हैं. Okay, so let's start. Sir, why are these students protesting? Aman, they are demonstrating to spread awareness on saving our environment from pollution. Pollution? What is that? Aman, to live a healthy life, we need pure air, water and soil. However, releasing harmful substances into the air, water bodies and soil is called pollution. Sir, what are the things that pollute the air, water and soil? And what can we do to prevent it? Friends, like Aman, you may also want to know about air, water and soil pollution. Let us study about pollution in this module. We all need clean air to live. However, the smoke from our homes, vehicles and industries pollute the air. To stop air pollution, we should walk or ride a cycle to nearby distances. Switch off the engine of our vehicle at red lights. Use public transport to reduce the number of vehicles on the road. We should use eco-friendly fuels like CNG to run our vehicles. Also, we should get our vehicles serviced regularly. Not allow polluting industries to operate in residential areas. Plant more trees. Trees absorb the polluted air and release clean air into the environment. Friends, you should spread awareness and educate people about the harmful effects of pollution and different ways to control it. Water is essential for all living beings. Example, plants, animals, and human beings. Plants need water to prepare their food. We need water for drinking, cooking, and everyday activities like bathing and cleaning. Water is also used as a medium of transport. It is also used in industries. For example, it is used for generating electricity. However, some people dump their domestic waste and sewage into the natural water bodies. In the same way, many industries release harmful chemicals into nearby water bodies. All these activities cause water pollution. To prevent water pollution in water bodies, we should not dump garbage in them, allow sewage water to run into them, reduce the use of fertilizers and insecticides. Whereas to conserve water, we should avoid wasting water, close all taps when not in use and repair leaky taps, construct dams to store flood water, store rainwater during the monsoons. Friends, look at this potter. Let us see what is he doing. He is making pots of soil. Do you know some other things which are made of soil? Soil is used to make pots, toys, utensils, and bricks. In some villages, houses are still made of mud. Petrol, diesel, and kerosene oil are all obtained from crude oil, which is present in the earth. Small animals like earthworms, snakes, rabbits, rats, termites, and ants live in the soil. Plants need soil to grow in. They absorb water from the soil. Soil which is rich in humus is fertile. Roots of plants hold soil particles firmly
and prevent them from being carried away. However, because of excessive cutting of trees, soil becomes loose and gets carried away by rainwater and strong winds. To prevent this, we should grow more and more plants and help in conserving soil. Sir, from today, I will agree to walk or cycle to nearby distances. I will also plant many trees. And I will never waste water or throw any rubbish in any kind of water body. Good boy. Yes, so this is about the conservation of soil कि आपको soil का conservation क्यों करना चाहिए and क्या-क्या steps you can follow to conserve the soil. ठीक है, soil erosion को हम कैसे रोक सकते हैं हमारी soil को खराब होने से, वो सब चीजें इसमें बताई गई है. Is that clear? चलिए, now let's start with the mineral resources. ठीक है, अब mineral resources क्या होते हैं? ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. तो अब मिनरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ. रिसोर्सेज हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं. ठीक है, हमने जब पहले वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे. ठीक है, तो अब वैसे ही मिनरल रिसोर्सेज भी क्या होते हैं. मिनरल रिसोर्सेज एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं that are naturally present in the earth, जो naturally present होते हैं अर्थ के ऊपर and are used by human for their various needs. ठीक है, और क्या होता है कि ये जो मिनरल यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कौन यूज करता है. ह्यूमन यूज करता है अपनी नीड्स को, अपनी जो उनको नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो है ह्यूमंस जो इस चीज का यूज करते हैं. Minerals that are found deep underneath the earth's surface are dug out through huge holes. और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो हमें अंडरनीथ यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर डिग करके जो है मिलते हैं. सो दीज होल्स आर कॉल्ड माइंस, यानी कि जो हम डिग करके, जो गड्ढा करके या होल्स करके जो कुछ मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उन होल्स को क्या बोला जाता है, माइंस. यानी कि जैसे आप सोने की आप गोल्ड माइंस बोलो तो गोल्ड माइंस जो है खुदाई करके जो है निकलती है. यानी कि जो गोल्ड का जो आप देखोगे, गोल्ड भी एक तरह से क्या है, मिनरल है जो हमें क्या मिलता है, खुदाई करके मिलता है. तो इसलिए गोल्ड माइंस बोला जाता है. यानी कि वो मिनरल्स जिसको जो है वी हैव टू फाउंड फ्रॉम दी डिगिंग फ्रॉम दी ह्यूज होल्स, जो हमें जो अर्थ के सरफेस में डग करके खोद के खुदाई के टाइम पे जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइंस बोलते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ डिगिंग मिनरल्स, और जो वो होल होता है उसको तो माइंस बोला जाता है. और जो ये प्रोसेस चल रही होती है खुदाई करने की और जो है मिनरल्स को फाइंड आउट करने की, जो पूरा वो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ अब मिनरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. मिनरल रिसोर्सेज जो है दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द मेटेलिक एंड सेकेंड इज द नॉन मेटेलिक. अब व्हाट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि द मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक्स. यानी कि वो मिनरल्स जिससे हमें मेटल मिल रहा है, मेटल की फॉर्म में जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, दोज आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो नेचुरली अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं और जिनका यूज कौन करता है, ह्यूमन यूज करता है. प्लस ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमें क्या है अर्थ सरफेस पे अंडरनीथ यानी कि उस पे खुदाई करके डिग करके जो हमें मिलते हैं मिनरल्स, उनको भी क्या कहा जाता है, मिनरल रिसोर्सेज कहा जाता है. बट वो जो होल्स हम बनाते हैं मिनरल्स को फाउंड करने के लिए उसको माइंस बोलते हैं. और जो पूरा वर्क चल रहा होता है, जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, उसको हम माइनिंग बोलते हैं. ठीक है, देन मिनरल रिसोर्सेज जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज मेटेलिक एंड सेकंड इज नॉन मेटेलिक. सो आपको नेम से पता चल रहा होगा, मेटेलिक मींस जिसमें हमें वो रिसोर्सेज जिसमें हमें मेटल के कुछ सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, और नॉन मेटेलिक वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हमें जो है नॉन मेटल वाले सब्सटेंस मिलते हैं जिसमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, अब मेटल होता क्या है वो भी चीज देखेंगे. So metal are hard, usually shiny substance that exists naturally in the earth. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो गोल्ड कॉइन जो है अर्थ वो डिग करके जो है निकाला जाता है, सोना या सोने की खदान जो बोला जाता है माइंस को, तो वो कैसे होता है, डिग करके निकाली जाती है चीजें. तो मेटल वो चीजें होती है जो हार्ड होती है, जैसे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपकी मेटल की चीजें हैं. ब्रॉन्ज हो गया,
तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूजुअली शाइनी होते हैं, ठीक है, और नेचुरली जो है अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन एंड एल्यूमिनियम आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। So many things that you see around you such as the door knob, यानी कि वो जो आपके डोर पे जो कुंडी लगी हुई होती है, आपके जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, जो सीजर वगैरह होते हैं, सो ये आपके सारे मेटेलिक मिनरल से बने हुए हैं, ठीक है। सो नाउ हाउएवर ऑल मिनरल्स आर नॉट मेटल्स। मैंने बताया कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मिनरल्स भी मिलते हैं जो मेटल की फॉर्म में नहीं होते। मेटल्स ध्यान रखना है आपको क्या होता है, ठीक है, वो चीजें वो जो हार्ड होती हैं, शाइनी होती हैं और जो हमें नेचुरली प्रेजेंट होती हैं अर्थ पे, ठीक है। और नॉन मेटेलिक चीजें क्या होती है, जो मेटल से नहीं बनी हुई होती, ठीक है। सो दीज आर सम मिनरल्स सच एज लाइमस्टोन, मिका, कोल, जैसे सॉल्ट हो गया आपका, डायमंड हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया। इनको आप देखोगे ये हार्ड नहीं है, ये शाइनी सब्सटेंस नहीं है। आप जैसे देखोगे जो आपका जो गेट है उसका जो कुंडी हो गई या नोब हो गया, उसको आप देखोगे वो शाइनी भी है, हार्ड भी है ना। बट आप कोल को देखोगे, लाइमस्टोन को देखोगे, सॉल्ट, नमक को देखोगे, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हार्ड चीजें या हार्ड सब्सटेंस नहीं है। तो इसलिए ये नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। बट ये हमें फाउंड कहाँ से हो रही है, नेचुरली हमें अर्थ से ही मिल रही है। तो अर्थ के अंदर से आपको दो तरह के मिनरल्स मिलते हैं, एक मेटेलिक होता है, एक नॉन मेटेलिक होता है। मेटेलिक कुछ हार्ड होता है, शाइनी होता है, ठीक है, और जबकि जो नॉन मेटेलिक है वो हार्ड और शाइनी नहीं होता है। तो वो आपको एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे मेटेलिक में आपका जाएगा आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, एल्यूमिनियम। जो आपके बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ये सब आप देखोगे कोई एल्यूमिनियम से बना हुआ है, कोई किसी ब्रॉन्ज से बना हुआ है, वो तांबे के बर्तन भी यूज करते थे। तो सब अलग अलग तरह की चीज है, ओके। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज मेटेलिक एंड व्हाट इज नॉट नॉन मेटेलिक। मेटेलिक दैट आर मेड अप ऑफ जो मेटल्स की फॉर्म में फाउंड होते हैं, एंड मेटेलिक नॉन मेटेलिक वो होते हैं जो मेटल की फॉर्म में फाउंड नहीं होते हैं। सो दीज आर देयर एग्जांपल्स, आपको जो याद रखना है। सो दे आर नॉट हार्ड एंड डू नॉट शाइन, यही मैंने आपको बताया। आप सॉल्ट को देखोगे तो वो क्या हार्ड होता है क्या, नहीं, वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लस उसमें कुछ शाइन थोड़ी ना होती है, वो चमक रहा थोड़ी ना होता है गोल्ड और सिल्वर की तरह। तो इसलिए वो क्या है, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है या नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज है, ठीक है। अब ये कुछ आपको यूजेस बताए हैं किसके, मिनरल्स के। जैसे जो स्टील है, स्टील का बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हो। ये सब रिसोर्सेज हैं, आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं। स्टील भी हमें डिग करके जो है फाउंड होता है। तो ये क्या है, यूज्ड इन आवर बिल्डिंग इज मेड विद आयरन। आयरन से जो है बनाया हुआ होता है, ठीक है। इसको हम शेप देते हैं और वो पूरा अच्छे से हम जो बिल्डिंग्स वगैरह का फॉर्म करते हैं इसमें। वैसे ही ब्रिक्स आर मेड यूजिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। ब्रिक्स भी जो है कैसे बनी हुई होती है, रॉक और मिनरल से बनी हुई होती है, सच एज सैंड, क्ले एंड लाइमस्टोन। ब्रिक्स का हम क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स का हमारे बहुत जगह पे यूज आता है, ठीक है। पेवमेंट बाय द साइड्स ऑफ रोड आर मेड ऑफ कंक्रीट व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड रॉक एंड लाइमस्टोन। जो आपकी जो पेवमेंट्स है, ये जो साइड में है, ठीक है, ये भी किससे बनी हुई होती है, पेवमेंट्स बाय द साइड ऑफ रोड। रोड के आसपास ये जो ये है ना आपका, ये जो बना हुआ है पेवमेंट्स वगैरह, जिसपे आप ट्रैक भी बोल सकते हो जिसको, ये क्या होता है, कंक्रीट से बना हुआ होता है। अब कंक्रीट क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है रॉक और लाइमस्टोन का। तो रॉक और लाइमस्टोन भी हमने पढ़ा था मिनरल्स ही होते हैं। देन आपका जो कैल्शियम फाउंड इन मिल्क हेल्प अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। मिल्क के अंदर जो कैल्शियम फाउंड होता है वो भी नेचुरली है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडीज, हमारी जो बॉडी या बोन्स है वो उसको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है। फिर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर क्ले, पॉटरी, पोर्सलिन, डिशेस एंड ग्लासेस टू आर मेड ऑफ फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। जो ये क्ले, पॉटरीज वगैरह वगैरह हैं, जो हमारे डिशेस हैं, जो कप हैं, ठीक है, ये सब भी किससे बना हुआ होता है, रॉक और मिनरल से ही बना हुआ होता है। देन द काउंटर टॉप इन सम किचन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ये जो काउंटर टॉप्स है जो आप देख सकते हो, ठीक है, आपकी किचन का जो ये स्लैब होता है ना, ये भी किससे बना हुआ होता है, मोस्ट ऑफ दी ग्रेनाइट से बना होता है। तो ये सब चीजें जो हमें नेचुरली हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, जो हमें मिलती है, जिनका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो पोर्सलेन क्या होता है, इट्स अ हार्ड शाइनी व्हाइट सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव डिशेस। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा शाइनी व्हाइट सब्सटेंस होता है जो आपके डिशेस एंड कप को एकदम शाइनी बना देता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो ये डेकोरेशन करने के लिए आपके डिशेस, कप्स वगैरह को जो है बना व्हाइट मतलब शाइनी बनाने के लिए एक सब्सटेंस यूज होता है, ठीक है।
सो दीज आर सम यूजेस ऑफ मिनरल्स। आप देख सकते हो कि ये कुछ कुछ यूजेस है जो आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, अब कौन से जो मिनरल्स है कहाँ पे फाउंड होते हैं, हमें कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उसका एक ही टेबल दिया हुआ है आपको। जैसे जो आपका आयरन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक साइड में देखने को मिलता है। कॉपर जो है हमें मध्य प्रदेश, झारखंड में देखने को, राजस्थान में भी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे ये सब चीजें पाई जाती है। अब इसके साथ साथ में कुछ यूजेस भी है, जैसे आयरन जो है उसको यूज किया जाता है टू मेक स्टील। ठीक है, आयरन की हेल्प से जो है, आयरन के उससे क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील से हम बिल्डिंग्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह ये सब बना सकते हैं। वैसे ही कॉपर जो है इज मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। आपने देखा होगा कॉपर की वायर यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करनी होती है घर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर का यूज करते हैं। सो कॉपर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सर्टेन टूल्स एंड यूटेंसिल्स, और कॉपर के भी कुछ बर्तन और कुछ टूल्स भी उससे बनाए जाते हैं। तो ये यूजेस है। अब कोल है, कोल कहाँ कहाँ पे यूज आता है, और सबसे पहले तो आप भी देखेंगे कोल जो है मिलते कहाँ है हमें, तो झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है कोल्स जो है फाउंड होते हैं। यहाँ पे ये जो मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब कोल का बेसिकली क्या यूज आता है, पुराने टाइम में कोल किस लिए यूज करते थे, यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग के लिए यूज आता था। ठीक है, और जो है कोल किसके लिए यूज आता था, ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, आप कुछ फैक्ट्रीज में कुछ मशीनें हैं उनको चलाने के लिए भी जो है क्या होता था, कोल का यूज किया जाता है। देन पेट्रोलियम कहाँ फाउंड होता है, ये सब मिनरल्स है, आपको ध्यान रखना है। मिनरल्स के नेम यू हैव टू रिमेम्बर कि इस तरह के जो है या इस टाइप के जो है मिनरल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ फाउंड होता है, मुंबई में फाउंड होता है, देन असम एंड गुजरात में। अब पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ यूज आता है, इज यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक या कॉस्मेटिक्स में यूज आता है। पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो है हमारे व्हीकल्स को रन करने में भी हेल्प होता है ना। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो हमारी बाइक्स, कार वगैरह, स्कूटीज वगैरह नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे व्हीकल को भी रन करने में हेल्प करता है। देन केरोसिन जो है कहाँ यूज आता है, घर में, इज यूज फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस के लिए भी यूज आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का यूज कहाँ कहाँ होता है, सो एल्यूमिनियम का यूज इज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाने में। ठीक है, एयरक्राफ्ट लाइक एरोप्लेन्स वगैरह में भी यूज होता है, प्लस आपके मटेरियल्स को बिल्डिंग मटेरियल्स में भी जो है एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं। और ये कहाँ पे मिनरल्स फाउंड होते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। फिर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्या होता है, लाइमस्टोन इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। लाइमस्टोन जो है वो हमें सीमेंट्स बनाने के अंदर काम आता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो मिनरल्स हैं उनके क्या यूजेस हैं आपके अकॉर्डिंग, एकदम मतलब नॉर्मल आप कैसे उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, तो आपको मेन इसकी यूजेस पता होने चाहिए। ठीक है, सिटीज, स्टेट्स बहुत सारे हैं, आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लर्न करने में कि कौन से स्टेट पर्टिकुलर में कौन से मिनरल फाउंड होते हैं। तो ये अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसके यूजेस याद रखिए। ठीक है, उसके यूजेस जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोल जो है कहाँ यूज होता है, पेट्रोलियम कहाँ यूज होता है, एल्यूमिनियम का यूज क्या है ना। तो ये यूजेस आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हमें मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, हमने पढ़ा था कि बिकॉज ह्यूमन की नीड्स है, ह्यूमन मिनरल्स का यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे पेट्रोल एंड डीजल है, तो पेट्रोल एंड डीजल अगर नहीं होगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो दीज मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर में कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, एंड इसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म, देयरफॉर दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो सम ऑफ द वेज टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज आर लिस्टेड बिलो। तो हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी पढ़ा था, हमने जो 4th चैप्टर पढ़ा था, इनफैक्ट उसमें भी था, सॉरी 5th चैप्टर में पढ़ा था कि हम कैसे जो है रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो वही सब चीजें इसमें है कि पेट्रोल और डीजल का हम अलग अलग यूज ना करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस का यूज करें, है ना। सब अलग अलग जाने की बजाय क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और बस का यूज करें या मेट्रोस का यूज करें, सब एक साथ जो है जाएं अलग अलग जाने की बजाय।
ठीक है, और वी कैन टेक टर्न टू ड्राइव ईच अदर टू ऑफिस बाय वर्किंग आउट कारपूल्स। कारपूल्स का भी मैंने बताया था कि जैसे कार शेयरिंग कर ले, एक ही कार में 3-4 जने बैठ के चले जाएं। अगर आपके ऑफिस के आसपास के लोग 3-4 जने साथ में जा रहे हो आप, ठीक है, मतलब लाइक सेम ऑफिस में जा रहे हो आप, तो आप क्या करो, कारपूल कर लो या कैब बुक कर लो जिसमें चारों जने जो है एक साथ जाओ, और जो उससे भी क्या होगा, आपका फ्यूल सेव हो जाएगा। Then a large amount of coal is used to make electricity. We must save electricity to preserve coal. हमने पढ़ा था कि कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम आता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, जितना हो सके बचत करनी चाहिए। जहाँ पे हम नहीं बैठ रहे वहां पे फैंस लाइट्स ऑफ करें, तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली हमारा जो है कोल भी प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, सो एंड वी यूज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सनलाइट, विंड एंड वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और हमें अदर सोर्सेज भी यूज करने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, ठीक है, लाइक सनलाइट, विंड एंड वाटर। सो बाय दीज आप इन सारे स्टेप से, बाय दीज स्टेप्स यू कैन कंजर्व दी मिनरल्स। आप जो आप नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको आप इस तरीके से जो है कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट में चीजें हैं ये हम ऑलरेडी हमारे 5th चैप्टर में जो है पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको यूजेस बताए हैं, देन कौन सा जो मिनरल है कहाँ फाउंड होगा, वो सब चीजें हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दैट इज द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। Use of metallic and non-metallic minerals. Hi kids, I am Know-How. Let us have fun learning about the uses of metallic and non-metallic minerals today. We use minerals in many ways in our everyday life. Roads, buildings, and several things that we use every day contain minerals. We will now look at some common uses of various metallic and non-metallic minerals. Aluminium is used in automobiles and airplanes, bottling and canning industries, building and electrical appliances. Calcium is used in glue, food, paints, paper, medicines, plastics, rubber, and as crushed stone in construction. In other words, calcium has widespread use. The non-metallic minerals deposits of calcium are found in so many places. Cement is used for building materials. Cement is a mixture of powdered lime, clay, and other minerals that harden when water is added to it. There are many different clay minerals that are used for industrial application. Clay minerals are used in the manufacturing of paper, rubber, crockery and pottery, floor and wall tiles, sanitary and construction materials. Copper is used in electric cables and wires, switches, industrial machinery and equipment, coins and jewelry. Diamond. Industrial diamonds are those that cannot be used as gems. Large diamonds are used in tools and drilling bits to cut rocks and small stones. Small diamonds, also known as dust or grit, are used for cutting and polishing stone and ceramic products. Gold. Gold is used in dentistry and medicine, jewelry, medallions and coins. It is also used for scientific and electronic instruments, computer circuits, and in the aerospace industry. Granite. Granite can be cut into large blocks and is used as a building stone. After being polished, it is used for making monuments, buildings, and statues. Graphite. Graphite is a crystal form of carbon. Graphite is used in brake linings and making lead in pencils. Iodine. Iodine is used as antibacterial agents in soaps and cleaning products in restrooms.
in iodized salts, and as an antiseptic in first aid boxes. Iron ore. Iron ore is used to manufacture various types of steel, magnets, and auto parts. Lead. Lead is used in batteries, construction ammunition, television tubes, ceramic, weights, and containers. Limestone. Limestone is used as building stone, cement, and glass. Sandstone. Sandstone is used as building stone, road bases and coverings, and snow and ice control. Silver. Silver is used in photographic equipment, electrical and electronic products, crockery, wires, jewelry, and coins. Tin. Tin is used in manufacture of cans and containers, electrical equipment, and chemicals. Zinc. Zinc is used as protective coating on steel and in rubber and paint. Zinc is also used in automotive parts, electrical fuses, dry cell batteries, and chemicals. It is also used in medicines and paints and sunscreen lotions. I hope you all had as much fun as I did learning about the uses of different metallic and non-metallic minerals. Till we meet again, keep learning, kids. Yes, so now our chapter 6 is completed. हमारा chapter 6 complete हो चुका है. That is the soil and mineral resources of India. ना? So in next class we will start the next chapter. Okay.